Good afternoon. I am Vikas Anand, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for joining. Or as you know, we are undergoing lot of progress in terms of service delivery, and a new awards have been institutionalized by Department of Administrative Reform and Public Grievance. Or what I have seen from the daily reports, large number of panchayats have already started making application for the awards, and nearly 30,000 gram panchayats have already submitted their application for the awards, which is very encouraging. But the situation varies from state to state and also in the UTs. And for today's VC, we have few topics which we will discuss today. One is the awards which have been set up by the DARPG on National Awards for E-Governance. Then the Citizen Charter and the online service delivery at the grassroots level. The status of digital payment, including UPI enabled payments at the panchayat level, and any technical issues with regard to eGram Swaraj, PFMS, EGS integration, PFMS GEM interface, and also any other portal of the ministry which the Panchayati Raj department across states and UTs are using. तो आज की ये जो हमारे चार शेयर है वो शेयर, तो ये जो चार हमारे आज एजेंडा है ये काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ई पंचायत प्रोग्राम है, ई पंचायत जो प्रोजेक्ट है, उसमें काफी काम पंचायतें हम ऑनलाइन कर रही हैं. लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग done online by the panchayats. So we will discuss these issues one by one, and then we will take feedback from the states for improving. If any portal needs any improvement, we will, your suggestions are most welcome. At the same time, I request the states who are not doing very well in making applications for the awards to encourage their panchayats for making their applications, for completing their applications well before 14th of February, which is the last date of application. Next. हाँ कोई नहीं. Next. So regarding service delivery, I am working in this ministry for last 2 years. Even within last 2 years, I have seen lot of, in fact, paradigm shift in terms of the panchayats being now considered as the more as the civic bodies, civic agencies than the local self government. So and people also have lot of expectations from panchayat. आज की डेट में जो पंचायतें काम कर रही हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं एज अ सिविक एजेंसी, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं, और काफी सर्विसेज जो है वो लोगों को ग्रास रूट्स पे पंचायत ही उपलब्ध करा रही हैं. So panchayats are playing great role in public service delivery at the grassroots in the rural areas, and more than 2 lakh panchayats have already, they have published their citizen charter across the states. We will also show the progress of various states in adoption of citizen charter, and there are some core services which are inalienable from the working of the panchayats. जो पंचायत काम कर रही हैं और इनके बीच में कोई, there cannot be any distance. Panchayats have to deliver these services, including the birth certificate, the death certificate, maybe a marriage certificate, and construction permission, building plan sanction, and similarly services related to NREGS, water connection, street lights, all these things are there. Or in large number of states, lot of other services have also been delegated to the panchayat. We are not saying that the services are necessarily to be, all services are to be delivered by panchayat, but at least there should be
delivery of service at the panchayat level. So if there is a common service center at the panchayat level, in a panchayat, there is a common service center, people can access the common service center and they can get the service, online service access through the common service center. So the awards also make clear distinction between the services at the GP level, Gram Panchayat level, and also services which are being delivered by the panchayats. तो दोनों में हमने डिस्टिंक्शन किया है. जो पंचायत लेवल पर कोशिश होनी चाहिए कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो पंचायत लेवल पे अवेलेबल हों, आइदर थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, अदरवाइज पंचायत अपना कुछ और उसका इंतजाम करे. नेक्स्ट. So yeah, we have discussed. Some are the consumer utility services, water hai, sanitation related services hai. Then there can be services related to development and also NREGS services hai. Then statutory services hai, like issuance of birth certificate, death certificate. Then trade license is there, building plan sanction is there. So all those things are there. Next. Next. थोड़ा लैग है इसमें. तो अभी एज पर आवर रिकॉर्ड्स 2.15 लाख पंचायत हैव ऑलरेडी पब्लिश देयर सिटीजन चार्टर. स्टेट वाइज है इसमें. हाँ, सो वी विल आल्सो शो स्टेट वाइज. इफ इट इज नॉट इन दिस, आई थिंक इट इज नॉट इन दिस पीपीटी, बट अलग से दिखा देंगे. नेक्स्ट. It is very important to have a service delivery points and to have a citizen charter, otherwise the timelines for delivery of services will not be known to the public. अगर हमने कोई टाइमलाइन पब्लिश ही नहीं किया कि बर्थ सर्टिफिकेट हम 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, तो वो सेवा, वो सर्विस लोगों को मुहैया नहीं हो पाएगी. वो सर्विस आप लोगों को नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका टाइमलाइन कुछ नहीं है. अगर टाइमलाइन होगा तो आपके एवरी स्टेट हैज अ राइट टू डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट. तो उसमें देयर आर फाइन्स, देयर आर पेनल्टीज. सो आई थिंक it is very important to have a timeline fixed for all the services which are provided by the panchayat and which are available at the panchayat level. So okay. Regarding the service delivery, even there is some problem here. In Maharashtra, total service count is seen only as 9, whereas in Kerala it is 214 and in Gujarat it is 321. It is not known whether only 9 services are available for the public at the Gram Panchayat level in Maharashtra, or 321 services are actually delivered by the Panchayat. So we will again circulate this format shortly to all the states with slightly changed, and we will also include this format on the eGram Swaraj at the state login. The states can fill the number of services which are available at the panchayat level and the number of services delivered by the panchayat, where panchayat is the main agency for delivery of service, like maybe birth certificate, death certificate, registration of marriage which has already solemnized. We will give you the new format, and जोशी जी इसको ई ग्राम स्वराज में ये इसको भरवाना है, ठीक है ना. जो भी हमारे ये रहेंगे स्टेट लॉगिन में देना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट. ये तो दियो सर स्टेट लॉगिन में. हाँ जी. और सर वो भरवा अपडेट नहीं दिखा देंगे. वो भी आ रहा है सर नेक्स्ट. ठीक है. सर अपडेट नहीं करते तो प्लान अपलोड भी So, नहीं करने दे रहे. okay. So you can see that Maharashtra has only 9 services count, and even Nagaland has 12 services count. Odisha has 34 services. So we need to look into it whether services, why some of these states are showing lesser number of services, even though they may be actually providing more services at the panchayat level. Next. एक बार EGS पे दिखा भी देना. प्रोफाइलर में स्टेट भरेगा. सर प्रोफाइलर में स्टेट भरा है, उसके बेसिस पर ये डेटा कंपाइल.
अच्छा, ये इसमें दोनों में फर्क है. नाउ द सर्विसेज जो अभी हमने पहले आपको दिखाया प्रीवियस 2 स्लाइड्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन collected through the Google Sheet. This is the actual information which is available on the profiler of the eGram Swaraj portal. So there is huge, in fact, uh, I can say that it is totally the gap. You can see the gap is so much between what is available through the Google Sheet and what is there in the profiler. So we need to improve the profiler, and we request you to put someone on the job of filling this form in the eGram Swaraj who knows who has actual knowledge of the services being delivered at the panchayat level. Next, इसको भी चेंज करना है फॉर्मेट. ये फॉर्मेट नया लगाना है. इस साल के आए नहीं है ना, अभी भरे नहीं है किसी ने. सर ये वही डेटा जो नेक्स्ट भरा ही नहीं है अभी ना लोगों ने. इसका फॉर्मेट चेंज करना है हमें. So we will also change the format on eGram Swaraj. We will request you also to give your suggestions if in what format the information can be collected, so that we have exact record of the number of services delivered by the states to the people at the panchayat level. And now the awards initiated by DRPG on the request of the Minister of Panchayati Raj. The assessment criteria we have already circulated. All the committees, whether block panchayat level assessment committee, which has been constituted for good governance, theme 8 of LSDG for the National Panchayat Award, that has to now assess the application submitted by the panchayat, and based on that 3 panchayats have to be selected by the BPPAC, और उसका they have to do the field survey to see the information is correctly filled, and then recommend 3 panchayats to the district level committee, and district level committee has to select 1 panchayat from these 3 to the state level committee. In case there is any problem with the data or the recommendations made by the panchayat, by the block level committee, district can ask for next panchayat in the as per the marking, or the panchayat after that. But again, district has to ensure that the panchayat has filled the data correctly and the field visit has verified their claim, and then the state has to recommend 1 panchayat to the ministry. So my request is, please mobilize all the committees at the block level, district level and the state level for assessment, because immediately after 14th of February, block level panchayat assessment committee will have only, I think 1 week है ना, 1 week assessment का block level पे. 1 week or 10 days will be there. We will show you the timelines also. Next. अच्छा कर दिया. So you have only 1 week. Sorry, 13 दिन. 2 weeks, nearly 2 weeks hai. And by 15th, panchayats will close their data entry, and by 20th of February, the blocks have to verify and recommend. And 2 weeks after that, district panchayats have to do that, and then by 7th of April, the state committee has to recommend to the Ministry of Panchayati Raj. Next. So this is a state-wise performance. You can see that Andhra Pradesh, then Gujarat, Himachal, Karnataka, Kerala has also started. Next. Then Telangana, Dadra Nagar Haveli, Uttarakhand.
these are the only states which have made some progress. Some of these, Andhra Pradesh, Odisha, and I think Telangana, they have made very good progress. But rest of the states, there is a need for encouraging panchayats to submit their applications immediately, because today is 31st. We have only 2 weeks left, and it will take time for panchayats to see the records and fill the information. पीछे back कर देना. हाँ. So in other states like Gujarat, more than 60% panchayats have already initiated. So it will be easier for them to complete the process early. Similarly, Karnataka, they has done well. They have started in 54% panchayats, and out of that, out of total 47% panchayats have already filled, and Kerala also 43% have already started. It will be easy for them to complete. Rest of the other states, including Arunachal, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, and Jharkhand, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, all have to encourage their panchayats to fill the applications on priority. Next. Demonstration. एक मिनट पहले पीछे चले, एक मिनट डेमो के बात करेंगे. Timeline है. और डिजिटल पेमेंट्स का भी था ना, वो आगे. तो I will after my presentation I will request Mr. Joshi for presentation on the portal digital. Also today in today's agenda is the digital payments. I am very happy to see that more than 50% of the states have already enabled the digital payments and also UPI based payments. Andhra Pradesh has completed. All panchayats they have completed, and even in Assam has progressed well, and but states like Bihar, Arunachal Pradesh has made some progress, but they have yet to complete the process. Bihar, Chhattisgarh, Goa, no progress has been reported till now. Next. It is not for the ministry or for you. It is for the ease of people who are living in panchayats. If the payment, if they can make payment online and it is easier for them, then they can also continue their engagement with the panchayat in a better way. List of panchayats who are Completed. Andhra Pradesh, okay. अभी कंप्लीट हो गया. आंध्र में तो हो गया. असम का, असम हैज कंप्लीटेड. आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्टिल आई थिंक 5000 जीपीज इसमें कम दिखा रहे हैं. यहाँ पे 22,000. ओके. सो महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड and Uttar Pradesh has completed this process of enabling UPI payments and the digital payments through POS machines or through their websites. But other states, they have to do some more work with panchayats and also with their finance departments, so that whatever services are being provided by panchayat, for that the fees which they charge, at least people should have that facility to make online payments through UPI or through POS machines or through online payments. Punjab, Rajasthan, then Ladakh, Jammu and Kashmir, all these states and UTs, they have to complete this process. My request is, please persuade the panchayats and also the finance department and the service provider. If needed, more meetings can be conducted with the service providers and the agencies which have to carry out this work.
Odisha also only 5 panchayats have been done, and rollout has to be made for all the panchayats. Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur, all these states have to conduct this exercise on priority. Next. Technical issues. Then if any technical issue is there, especially what I have learned is the problem of emails, NIC emails in integration of eGram Swaraj PFMS with GEM. We are working on that. We will discuss with you also today, and this is the progress on the integration of eGram Swaraj and PFMS. So Andhra 3% panchayats are still remaining. Arunachal Pradesh 9% has only 9% done. Goa, then Manipur, Maharashtra also 94% is done. Himachal around 100 panchayats are still left. Then Gujarat also nearly 1000 panchayats are still left. Similarly for Haryana. Next. Manipur only 4% have completed. And where interestingly Meghalaya has not even, there are only 3 ADCs. They have not started online payments, and their integration with the PFMS is also yet to be done. It will be very difficult for the ministry to release the 15 Finance Commission grant for the states if this process is not complete. And Mizoram, happily Mizoram has completed 99%, and Nagaland, despite our best efforts, is yet to complete the process in the village councils, for all the village councils. Odisha has completed 100%. Punjab, large number of panchayats have yet to be onboarded. Rajasthan, few are left. Sikkim, I think 5 panchayats are still remaining. Tamil Nadu 100% done. Telangana is on nearing completion. Tripura is again nearing completion. Then Uttarakhand nearing completion. Uttar Pradesh, West Bengal, they have done 100%. It is really heartening to see all this progress, but also not a very good reflection if not even 50% panchayats have been onboarded. So my request with all the states is, please make this integration possible, and whatever technical support is required from the ministry, we will be very happy to extend. Maybe if you need any handholding support, any capacity building training support, we are always there. We can come to the state. If you want, you can come here. We can organize a workshop here or in the states, or on VC we are available anytime. So please complete this onboarding process for all panchayats, all ADCs, whatever is applicable. So this work is, we can say, this has been done. Next. No, GEM. Now GEM is a different, it shows a different picture altogether. And Bihar ka कैसे पंचायत 85008 है इनकी 8174. 8.7. नहीं 8508 है. पूछ लेंगे अभी बिहार से. बिहार में आपके पंचायत का नंबर ठीक दिखा रहे हैं यहाँ पर. बिहार आपको हमारी आवाज आ रही है? बिहार देखने एक बार. बिहार कनेक्टेड है. बिहार की पंचायतें हैं. मैं check करता हूँ. नहीं इसमें फर्क है ये. बिहार आपको हमारी आवाज आ रही है? बिहार से कोई? एक बार बिहार सर्च करना. म्यूट तुमने यहाँ से म्यूट तो नहीं कर रखा?
नहीं, अलाउड है? हाँ अभी तो बोल रहे थे सर। SPRC बिहार, ये पंचायतें देख लेना इनकी, और देन गुजरात का नंबर ठीक है 14,376। और या अगेन गुजरात, the GEM onboarding is very I think it's lagging significantly. Himachal Pradesh, almost all the states except गुड मॉर्निंग सर, बिहार से बोल बिहार। रहे हैं। यस, बिहार Yes, में आपका ये जो नंबर आ रहा है 8174 है 8 या 8508 है नंबर ऑफ पंचायत। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 8053 है सर। 8053 है। यस सर। तो ये 8174 कैसे नंबर आ रहा है? ये हमारा पहले पंचायत था 8387, उसके बाद बहुत सारे पंचायत नोटिफाइड हुए हैं नगर पंचायत में, तो इसलिए वो शायद तो पहले का इसको आप एक हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आप ना करीब 150 पंचायत आपकी जो एक्स्ट्रा हैं, ये जितनी भी हैं 805 इतनी हटा के 70-80 पंचायत, इनको आप इनके LGD कोड्स को आप हटवा लीजिए, सो मैंने दैट एलजीडी से हटा दिए हैं सर। मैं एलजीडी से इसको हटा चुका हूँ सर, 8053 एलजीडी पे कर दिया। तो जैम पर आपका जैम से भी इसको हटवा लें। यस सर। आप कर दो, ठीक है। अब वो LGD कोड शेयर कर दिया, हम हटा देंगे। ओके सर। हमारा एक इशू था सर जेम पोर्टल पे सर। हाँ बताएं। स्टार्ट जब हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट में चल रहा था स्टार्टिंग में, तो हमारे यहाँ एलजीडी कोड जो दिख रहा था वो रिपीट मोड वाला दिख रहा था। जैसे किसी पंचायत का अगर 1 से 6 है तो वो दिख रहा था 1 2 3 4 5 6, देन फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रिपीट मोड में आ रहा था। तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और वो कंसर्न जस्ट अपर लेवल पे वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि और कोई एलजीडी कोड नहीं दिख रहा था। अब वो है कि वाउचर रिफ्लेक्ट नहीं करता है ई ग्राम स्वराज पे, तो या तो उसको ऐसा कुछ किया जाए सर कि हमारा वाउचर आ जाए, रिपीट मोड वाला भी वाउचर ई ग्राम स्वराज पे आ जाए। बल्क में ऐसा हुआ है हमारे। वो ऐसा था, हमने नोटिफाई करा दिया था एक लास्ट वीसी में, एक बार उन्होंने कुछ अपना पीओसी करके एडमिन अप्रूवल लेके उसको डिलीट करना था। आज इनको नहीं कुछ नहीं सर, वो लोग एक एक मांगते हैं, बोलते हैं एचओडी का लेटर एक एक का भेजो, एचओडी का लेटर, और उसमें भी वो लंबा टाइम लगता है जेम पोर्टल पे। कोई बात नहीं है। आप मेरे को एक काम करिए, आप हमको इनका लिख के आए कुछ, मेरी तरफ से लेटर भेजो, नेक्स्ट VC जो करेंगे ना उसमें उनको ऐड कर लेना, नवीन। और आप सेपरेटली कर लो बिहार के साथ में। हम आपके साथ में एक सेपरेट VC करेंगे, इसमें जैम से भी लोग जुड़ेंगे, और मैं आज आपके जो लेटर भेजे मंडे तक मैं आपका आई विल सेंड अ लेटर टू देम, और हम इसको वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक तक हम इसको रिजॉल्व करा लें, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। जो मेन इशू है वही मिनट्स में डालना, बाकी जो भी स्टेट ने, ऐसे ही जो बाकी राज्य हैं उसमें भी जो प्रोग्रेस झारखंड से सर, झारखंड से भी प्रोग्रेस बहुत ही डिस्करेजिंग है। हाँ आप बताइए। प्रणाम सर। सर हमारे यहाँ सर 50 ईमेल आईडी का सर वो डोमेन चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट मेल गया हुआ है सर, काफी दिन हो गए हैं। अच्छा वो हम लोग उसका डोमेन सर nep.gov.in आ रहा है। एक बार लिख लो किसको लिखना है, आप किससे बात करनी है। मैं ईमेल टीम और जेम दोनों के ये किनका है? ये ईमेल टीम ईमेल टीम, ठीक है। बट इनकी ये परसेंटेज गलत आ रहा है, क्योंकि झारखंड का जो नंबर ऑफ पंचायत है वो है 1156, और टोटल इनकी 25% होना चाहिए। अब 4345 सर हमारा है ना इनकी? 4300। हाँ यू देखो जेम पे 1156 है ना। अच्छा ऑर्डर वैल्यू है ये, नंबर ऑफ GP स्टार्टेड प्रोक्योरमेंट इसका परसेंटेज में भी निकाल लो, ठीक है। तो बिहार छत्तीसगढ़, अच्छा इन लोगों ने अच्छा किया है। गुजरात ने रजिस्टर किया है बट अभी प्रोक्योरमेंट नहीं शुरू किया। तो रजिस्ट्रेशन हमारा अंडमान निकोबार से रजिस्ट्रेशन 0 है, अरुणाचल प्रदेश से भी रजिस्ट्रेशन 0 है, आंध्र प्रदेश में अभी 50% से भी कम है। इसमें एक परसेंटेज का कॉलम लगा दो नेक्स्ट टाइम से, और मेरी तरफ से लेटर भी लिखो, क्योंकि
ऐसे ही हमने वी हैव क्रिएटेड ईमेल आईडीज आप सब लोगों के लिए 2-2.5 लाख ईमेल आईडीज क्रिएट करी, बट वो सारी के सारे नाउ दे आर डीएक्टिवेटेड बिकॉज स्टेट्स आर नॉट यूजिंग देम, द पंचायत्स आर नॉट यूजिंग देम. It's a matter of delight to see Bihar, Chhattisgarh, Haryana, and also Jharkhand and Karnataka. So they have started procurement, also Madhya Pradesh, and I will request that more and more online procurement and payment should be made by the panchayats for the sake of transparency and also for the sake of healthy competition. Next. Then the best performer is Maharashtra with again there is, देखो जीपी जितनी रेस्टोरेंट है उससे ज्यादा कैसे शुरू कर दिया. Is this number correct? 41599 Maharashtra. नहीं सर, number of GPs in Maharashtra sir 27,943. 943 है ना? Yes sir. 27,943. Yes sir. तो नहीं, आपका ये जो थर्ड कॉलम है ना, नंबर ऑफ जीपी स्टार्टिंग प्रोक्योरमेंट, आई थिंक ये इसमें गलती है. इट कैन नॉट बी सर मोर ये देन 18,900. सर ये ऑर्डर काउंट है, ये आई थिंक हेडिंग गलत डाल दी है. ये Yes, sir. ऑर्डर काउंट है. सर बिहार में भी ऐसा ही हुआ था, वो देखा हमने. इट मस्ट बी अच्छा. काउंट दिस थिंग. Total number of order count. नहीं, हमें तो ये चाहिए कितने पंचायत से स्टार्ट कर दिया. सो इन द वी शुड गिव इंफॉर्मेशन टू स्टेट्स, कितने पंचायत रजिस्टर हो गए, कितने बचे हैं, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पंचायत इन परसेंटेज की कितने अभी रजिस्टर हो गए हैं. देन हाउ मेनी पंचायत आर एक्चुअली यूजिंग जैम फॉर प्रोक्योरमेंट, वो भी हमारे पास डेटा होना चाहिए फॉर बेटर पिक्चर फॉर द स्टेट. ठीक है, ये ऑर्डर काउंट का जरूरत नहीं है हमें तो ये चाहिए कितने ऑनबोर्ड हो गए, कितनों ने स्टार्ट कर दिया, ये नहीं चाहिए. चलो ठीक है. सिमिलरली इन दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, देन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का फिर भी अच्छा है, बेटर देन अदर्स. वेस्ट बंगाल ओनली लेस देन 10%, तेलंगाना मोर देन 50%, which is good. Similarly, Tamil Nadu, Sikkim again 0. Rajasthan is also only 700 panchayats. Then Punjab also less than 5%. Odisha has done better, nearly 18-19% is there. But the best performer is again Maharashtra. And also the order value is best in Maharashtra. We are inviting Maharashtra for our international workshop on digital initiatives because they have performed very well in e-Gram Swaraj. I request all the states to do better on GEM and online payments, online procurements, so that the transparency is there. Next. ठीक है. यस बिहार एंड स्टेट, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, ये एलजीडी कोड डुप्लीकेट मर्ज होके आ रहे हैं बिल में, तो आप काइंडली वो सारी डिटेल्स एक बार शेयर कर दीजिए. मैंने अभी जैम में बात करी है मिस्टर नवीन से, तो वो कह रहे थे कि वो आपके मास्टर में जो आपने अप्रूवल कर दिया ना, आपके हायर टीयर ने वो गलत अप्रूवल कर रखा है. तो अब वो उसको करेक्ट करने के लिए उनको बिल डिटेल्स चाहिए, स्टेट वाइज आप दे दीजिए बिल डिटेल्स जिसमें आपको चैलेंज आ रहा है, तो वो फिर उसको कुछ एक सोल्यूशन देख के बताएंगे. तो आप आज की पीसी के बाद एक अपनी स्टेट वाइज बिल नंबर दे दीजिए जिसमें आपको डुप्लीकेट एलजीडी कोड दिख रहा है मर्ज किया हुआ. मैं बिल नंबर दूं या सर, या जो भी रजिस्टर हुए हैं अप्रूव उसका पूरा डिटेल एलजीडी कोड वाइज वो सेलेक्ट करके दे दूं? ना या बिल नंबर दे दीजिए, और दूसरा बाकी तो फिर वो हो जाएगा. बाकी तो मास्टर में है अभी ना, जिसपे बिल जनरेट नहीं हुआ. अब बिल जनरेट हो गया तो उनके मल्टीपल टेबल में डाटा चला गया है, वही एलजीडी कोड मर्जिंग वाला, तो ये उनको चैलेंज आ रहा है. ठीक है सर. तो उसको बैक एंड से करेक्ट करना उनके अलाउड नहीं है. हाँ सर, जो तो बिल वो चला फिर कुछ गया है, सिस्टम करेंगे. जो बिल चला गया है उसका तो मैं डाटा अभी मंगाना होगा. पेमेंट नहीं हो रही ना, बहुत सारे में पेमेंट नहीं हुई है. डाटा आप हाँ पेमेंट नहीं होगी नहीं पेमेंट उसकी ना, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोक्यूरमेंट भी आएगा नहीं नहीं हुआ वो है. डाटा. बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में प्रोक्यूरमेंट भी नहीं हुआ है, तो उसका बैकएंड से तो हो सकता है ना सर, मास्टर से करेक्ट हो जाएगा ना. मास्टर डिटेल तो करेक्ट हो सकती है, लेकिन आगे अगला प्रोसेस वगैरह हो गया तो करेक्शन नहीं हो पाएगी उसकी, तो उसका कुछ ठीक है सोल्यूशन वो बताएंगे. तो क्या डिटेल दे ओके दीजिए जहाँ जहाँ ओके पे. सर, वो ठीक है, मैं मंगा एक लेता थोड़ा हूँ. कॉलम वाइज डिटेल बना लीजिए. जी
ओके सर, वो मैं जी, जी। मंगा लेता हूँ। पहले ये मास्टर वाला भी कर दिया जाए सर, तो बाकी का आगे का जो भी करेंगे वो सही ठीक है, होगा। ठीक है। ओके। उसमें ले जाना, सिटीजन चार्टर का है, 2 मिनट मेरे को दे दीजिए। जी, स्टेट वाइज है सिटीजन चार्टर, हाँ अलग से है, जब तक जोशी जी करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, द सिटीजन चार्टर इन सम स्टेट्स, सिटीजन चार्टर आर येट टू बी प्रिपेयर्ड। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो सिटीजन चार्टर भी आप बनवा लें, हम अभी शेयर करते हैं अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद। हाउ मेनी स्टेट्स आर येट टू कंप्लीट दी ग्राम पंचायत विद सिटीजन चार्टर? जोशी जी आप जो बीपीपीएससी वाला और पायलट पे भी कहाँ पे एंट्री करते हैं वो बता देना, फॉर्मेट हम चेंज कर लेंगे। कहाँ से कर दो लॉगिन गौरव? अनमोल अपना लॉगिन करके शेयर करिए स्क्रीन। यस सर, कर रहे हैं। ओरिजिनल जो गया था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे भी आफ्टर द जीपी हैज फेल्ड एंड फ्रीज द डेटा, तो सेम प्रोसेस ऑफ द एमपीए विल बी फॉलोड एट द ब्लॉक लेवल कमेटी। सो हम जो भी प्रोसेस होगा जब जीपी जो है डेटा फिल कर देगी और डेटा फ्रीज कर देगी, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो नेशनल पंचायत अवार्ड में होता है एट द ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पे हम लॉगिन करेंगे ब्लॉक लेवल यूजर से। देयर आर 2 टाइप ऑफ यूजर्स, ब्लॉक लेवल यूजर्स और ब्लॉक लेवल कमेटी यूजर्स। तो ब्लॉक लेवल यूजर्स जो होते हैं वो कमेटी फॉर्म करते हैं, और जो कमेटी होती है वो असेसमेंट करती है जीपीस की। तो पहले हम ब्लॉक लेवल यूजर से लॉगिन करेंगे। अपना जो यूआरएल होगा वो सेम होगा, panchayataward.gov.in/nag। आप जो स्टेट वाले लोग हैं सारे, ये 15 फरवरी के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिजनेस असेसमेंट का, अगर 15 फरवरी के बाद डेट एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप स्टेट सभी अपने आप कह दीजिए कि ये डीआरपीजी अवार्ड है, ये 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। क्योंकि डीआरपीजी खुद डिसाइड करेगी कि डेट एक्सटेंड करनी है नहीं करनी, वो हमारी रिक्वेस्ट पे कोई डेट एक्सटेंड नहीं करेगी। तो यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होंगे वो एनपीए के यूज होंगे। वी विल यूज द लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर द एनपीए फॉर ब्लॉक लेवल यूजर्स। क्लिक ऑन सबमिट बटन। थोड़ा बड़ा कर दो इसको मोहित, अपना अनमोल थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर दो स्क्रीन को। तो प्रोसेस ये होगा कि पहले हम कमेटी मेंबर फॉर्म करेंगे। तो कमेटी मेंबर फॉर्म करने के 2 प्रोसेस है। कमेटी मेंबर पे हम जाएंगे, अंडर दैट वी विल क्लिक ऑन ऐड, एंटर द फर्स्ट नेम, enter the last name, enter the mobile number, select the committee member department, click on save button. Data saved successfully. At least 3 members should be there in the committee team to be formed. For the committee team to be formed, click on committee team. Under committee team, click on add. Select the team title, DRPG award. Select the nodal department. Select the chairperson of the committee. Select the member detail. Click on add. Select the member detail from the drop down and click on save button. Data saved successfully confirmation message has been displayed. Now to obtain the credentials, we will go on the committee team. Under committee team, we will click on manage, and then under the create user there is a button click. We will click on it and the user created successfully. For obtaining the credentials, login ID and the password, we will click under the view. Here is the user ID and here is the password. This is the one-time password. We will log in through this user ID. This is the committee which will perform the assessment for the GP.
ये कमेटी फॉर्म हुई है जो कि अब ये असेसमेंट करेगी जीपीस की। Click on submit button. This was the admin @123 was one time password. Enter the new password as per the password policy. The committee assessment, for the assessment, there are two processes. First, we have to save the assessment of all the GPs and then freeze the assessment. To save the assessment, we will go under the committee assessment and field verification menu. Click on add. Under the add, we will select award type. Select the award type as DARPG award. Set the local body type as village panchayat. Click on get data button. All the GPs those have freeze the data will be displayed over here along with their panchayat marks. For the assessment, click on the under the local body name hyperlink. Click on save button. If the BLC is not satisfied with the GP answer, then they can give on your assessment and then change the answer option. The marks will be changed accordingly. For all the 28 questions, the BLC or the committee user has to perform the assessment. Now enter the remarks. Sir, please share the screen, sir. Your screen is not visible. It's visual now. Yes. Give assessment. I will repeat the step. BLC committee user will give the assessment. Click on give your assessment. कंट्रोल प्लस से बड़ी कर लो, स्क्रीन छोटी आ रही है। हाँ ठीक है। Issuance of birth certificate. Click on the give assessment. If the BLC is not satisfied with the answer, then they can change the answer by changing or selecting the answer options. The marks will be updated according to the indicators. Give the answer assessment of all the 28 questions. Give the remarks. State government the concerned authorities are caring lot. वही करनी है जो तो कर दिया ढूंढ सब वो पेरेंट चाइल्ड वाला बता देना अनमोल कि अगर पेरेंट्स में क्वेश्चन में उन्होंने सिलेक्ट किया है कि नो सर्विसेज वाला, तो वो वहाँ पे डिसेबल्ड फॉर्म में दिखेगा, वो आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। Enter the remarks.
ये कंप्लीट हो गया? हो गया? नहीं अभी आप कर लीजिए। अभी हाँ इसको दे हाँ तो ओवरऑल बी पैक में मार्क्स होगा, वो जो कमिटी यूजर्स को है पूरा डालना पड़ेगा, एंटर करने का कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है। क्लिक ऑन सेव बटन। कॉपी पेस्ट काम तो काम कर रहा है तू। अरे इसमें नाम है। क्यों? टेक्स्ट एडिटर है ना, टेक्स्ट एडिटर इसलिए होता है कि आप खुद टाइप कर रखा है, उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइप करने का वो नहीं होता। ये किस ऊपर लिखा है। Assessment has been saved successfully. Now we have to freeze the assessment. मेरे को पहले भेज देना। Select the award type as DRPG award. Select the body type as local body type as village panchayat. Click on get data. Now click on the freeze button. Click on the download assessment file. The file will be downloaded to the system. This is the download assessment file looks like this. The sample of the download assessment file is like this. It will show that question answer description, the answer filled by the Gram Panchayat, the total marks, marks obtained, and the BPAC marks. Here the committee members will sign a name along with the same and counter signed by the Sarpanch and the Panchayat Secretary. This file need to be scanned in the non-pirated software, and then you have to upload through this link, and the PDF of that particular report should be 300 KB. So you have to ensure that this 1 page, 2 page must be scanned within 300 KB. After uploading the scanned PDF, click on the freeze button and the data will be freezed successfully. Now after the assessment has been done and freezed, we will have to recommend the panchayat to the district level. For the recommendation, there are two processes, that is the save and the freezing of the recommendation. Under the save, we will click on the panchayat recommendation. Under panchayat recommendation, we will click on add. Select the award body type as DRPG award. Select the local body type as an village panchayat and click on get data. Select the Gram Panchayat with the select the checkbox and click on save button. Now the Here you will find all the Gram Panchayat which have been whose committee assessment has been done by you and field verification report has been uploaded. So all those details of Panchayat will be populated in the Panchayat recommendation stage. So here you can select the Panchayat and recommend to the next higher level committee, that is district level committee, the district Panchayat assessment committee. Now for the freezing of the panchayat recommendation, we will undergo the panchayat recommendation and then we will click under the manage. Under the manage, we will select award type. हम award type select करेंगे, that is DRPG award. Click on the freeze icon. Under the click on the freeze icon. Click on confirm button. Accept the declaration. Here download the signature file, that is the recommendation file.
The signature file will be downloaded in your system. R carrying out to the A sample of the recommendation file will be shown as this. Here, this will be block Panchayat Performance Assessment Committee recommendation DRPG award, and the list that name of the Gram Panchayat that has been nominated. Here we have to upload, same process. We have to upload the scanned recommendation file on the system. To upload the scanned field verification file, click on the choose file, select the scan file, enter the name and the designation, जो ऑक्सीजन पे था उसमें नहीं बनता and click on the freeze button. जो उसमें नहीं बनता Select the OK button to confirm that you are likely to freeze. After the freezing, no modification will. यहाँ And पे अनमोल ये जो 50 kV रखा है ना, साइज एक कम है, इसको 200 kV के आसपास करना पड़ेगा। 50 kV में कोई भी एक पेज या डॉक्यूमेंट अच्छा स्कैन नहीं होगा। ठीक है सर, नोटेड। ये नहीं बनेगा इसी जाने दो इसी में जाने Change किया like. Now, after the BLC has recommended to the district level, our district level will perform the assessment of all the those GPs which has been recommended from the BLC level. तो DLC level पे भी same level होंगे, 2 level होंगे. First of all, the DLC जो DLC user होगा, that will form the committee, and that committee will perform the assessment of the gram panchayats that are nominated by the block level committees. और फिर स्टेट पे भी वही प्रोसेस होगा, लेकिन स्टेट का फाइनल दिखा सकते हो अनमोल? जो नेशनल लेवल पर रिकमेंड होगा वो है तैयार है तुम्हारे पास? सर पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं कि पहले डीएलसी से जाएगा फिर वो एसएलसी पे जाएगा। तो डीएलसी का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा डीएलसी में फिर टाइम लगेगा ना। नहीं, डीएलसी का कमेटी वाला दिखा देते हैं सर वो सभी। ठीक, कमेटी वाला दिखा। गौरव अगर कोई पड़ा हो इसके पास, कोई स्टेट लेवल पे रखा हो तो वो दिखा दो ना, स्टेट लेवल से अगर दिखाना है पहले का कोई डेमो में। अच्छा सर, वो टेस्ट करने के लिए पूरा रिकमेंड कर देते, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अच्छा, मैंने बोला था रख लेते हैं, चलो कोई ठीक है, जल्दी करके दिखा दो। 1T कोई सर प्रोसेस का कमेटी मेंबर टीम बना लेते सर सीधा। Same process, we have to follow the same process. सर द DRPG अवार्ड वही नोडल डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। क्लिक ऑन सेव बटन। Login credentials will be created over here. Even I cannot remember. कोई आ गया क्या ऐसे ही ऊपर इसको बंद करवाया पूरा बाहर है For the DLC also, we have to follow the two processes, that is the assessment, save, and the freeze. Under the click on the add, select the award type, select the local body type, and click on get data. Here all the GPs that has been nominated by the block level will be displayed over here.
If the DLC is satisfied with the answer, then no issues. If they want to change the answer, then they can same process as that of in DLC. DLC is requested to give the assessment for all the 28 questions. Enter the remarks. Your overall BPAC remarks as well as DPAC marks will be visible. Click on save button. Copy चल गया था पहले. Click on the save button. Now we have to freeze the assessment. Under the manage, select the award type, select the local body type, and then click on get data. Under the freeze, click under the freeze icon. Download assessment file. Upload the assessment file after being upload a scanned assessment file and click on the freeze icon. Data has been freezed successfully. Now we have to recommend the DPAC to the state level. Under the Panchayat recommendation, click on add. Allow नहीं होता ना तो assessment. The system does not allow till the PPAC timeline has been expired. Okay, material. करेगा एक वो पॉलिमिक क्वेश्चन में जाना थोड़ा चेंज करके उसको देख लो, स्पेशली उसका पार्ट ई देख लेना, वो ठीक लगता तो फिर विशदीप के साथ में उसको हिंदी भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? 280 नंबर कर दे, स्पेशली पार्ट ई देखना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला, तो मैंने छोटा कर दिया है.
क्वेश्चन भी ना इंग्लिश में छोटा कर दिया, उसी हिसाब से हिंदी में भी कट जाएगा। ठीक, थैंक यू। भैया वन था 202 ये था ना? ठीक है बस। Upper chair recommendation, click under the add, select the award type as DRPG award, and select the local body type as village panchayat, and then click on get data. क्या प्रोग्रेस है? Select the checkbox. Click on the save button. After panchayat recommendation, click under the manage. Select the DRPG award type. Under that, click under the freeze icon. Click on the confirm. Accept the declaration. Download the signature file. Upload the scanned signature file. Enter the name and the designation. Click on the freeze button. Data will be freeze successfully and it will be nominated for the state level. Again, that DLC, after the expiry of the DLC, the state level can perform the assessment. Before that, the state level cannot perform the assessment. Now log in through the SLC. Same process will be followed. The SLC committee user will form the committee, and that committee will be responsible for the assessment and freezing and recommendation to the state admin. Enter the SLC user's name. Click on the submit button. Click on the submit.
enter the details of all the 3 members. Click on save button. Now under the committee team, to form the committee team, click on add. Select the team title as DRPAG award. Select the nodal department. After selecting the nodal department, all the thematic awards will be displayed. Select the chairperson of the committee. Select the committee member of the committee, and then click on the save. Under the committee team, for the user credentials, under the committee team, select under the manage. Click on the create user. Now the user has been created successfully. Message will be displayed. Click on the view. The user ID, credentials, and the password will be displayed. Log in to the committee user credentials. Click on the submit button. Re-enter the password. Click on the save button. Now for all the DLC, all the GP that has been nominated by the DLC, they will display it on this state level committee. The committee has to perform the assessment and freeze the assessment, and then recommend to state admin. For saving the assessment, they will navigate through the committee assessment field verification. Click on add. Select the award type DRPG. Select the local body type as village panchayat, and click on get data. All the GPs that had been nominated from the district, from all the different districts, will be displayed over here. Click under the select the local body name whose assessment has to be performed. If this SLC is satisfied with the answer, just enter the remarks, or if they are not, then they can change the answer by clicking on the given assessment and then change the option and then click on the save button. It will be updated according to the indicators set. Perform all these functions, perform all these part for all the 28 questions. Enter the remarks. Enter the overall aspect marks and click on the save button. The data will be saved. Now after that, we have to freeze the assessment. For freezing the assessment, we will navigate from the committee assessment field verification and manage. Select the award type DRPAG award and select the local body type village panchayat, and then click on get data. After that, click on the freeze icon. Download the assessment file. By clicking on the download assessment file, upload the scanned assessment file and then click on the freeze button. The assessment will be freezed. Now after the freezing of the assessment, the SLC committee will recommend to the state admin. For recommendation, there are two processes, that is that save the assessment and save the recommendation and freeze the recommendation. For adding
For saving the recommendation, click under the add, select the award type, select the local body type, and then click on get data. Select the checkbox and click on the save button. After the data has been saved successfully, we have to freeze the assessment so that it can be recommended to the state admin. For that, we click on the manage, select the award type as the DRPG award, and then click on the freeze icon. Click on the confirm, accept the declaration, download a signature file and upload the signature file. Upload the scanned signature file. Now click on the freeze button. The data has been saved, freeze successfully. Now the data which has been saved will be sent to the state admin for the upload of the best practices and the best practices video. Click on the submit button. The panchayat recommendation. There's a two process. First of all, that they will save the recommendation and then freeze the recommendation. For saving the recommendation, under the panchayat recommendation, click on the add. Select the award type as the DRPG award. Select the local body type as village panchayat and then click on the get data. The nominated GP will be displayed over here. Select under the theme name. Upload the best practices document. It should be a Word document, and best practice should be submitted in the English language. If the best practice is submitted in Hindi or any other language, its translated version should be present in the English. Upload the best practices video. And then accept the select the accept radio button and then click on the save. Now again select the award type as an DRPG award. Select the local body type as village panchayat and then click on the get data button. Select the checkbox and then click on the save button. Now to freeze the recommendation, we'll transfer under the manage. We click on the manage. Select the award type. Select the DRPG award. Click on the freeze icon. Accept the declaration. Upload the signature. The signature will be of the authority of the state admin. Enter the name, enter the designation, and then click on the preview. Download the certificate. The certificate will be downloaded in the system. After that, click on the freeze button. The data will confirmation message will be displayed. Data will be frozen and no further modification would be allowed. Click on the OK. The data will be freezed successfully. The message confirmation message will be displayed. Now the panchayat will be recommended to the central level. Thank you all. Joshi sir. Joshi sir. आपका स्टेट लेवल तक का हो गया ना? ठीक है. अगर किसी स्टेट को if there is any question
from NIC regarding the process of the verification and all by the Panchayat Assessment Committee, or any question regarding the application to be made by the Gram Panchayat. They are most welcome for raising questions. किसी भी राज्य को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग अवार्ड्स या वेरिफिकेशन, तो कृपया करके वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं. उत्तराखंड, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है वेरिफिकेशन से रिलेटेड? नहीं सर, कोई इशू नहीं. ठीक है, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, पंचायत अवार्ड्स में भी करते हैं, तो हम लोग अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम वी विल क्लोज दिस मीटिंग बिफोर वी विल टेक जस्ट 2 minutes फॉर सिटीजन चार्टर के बारे में. आपको जो स्टेटस है हमारा स्टेट्स का, वो हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं. और आज का जो वीसी हुआ है थोड़ा सा जरूर इट वाज लेंदी, बट ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. अगर उससे रिलेटेड भी कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, ऑल द स्टेट्स आर मोस्ट वेलकम. आप अपलोड कर दो एक बार. सर फ्रॉम उत्तर प्रदेश. हाँ जी बताएं. सर हम लोगों ने कल रिकमेंडेशंस ग्राम स्वराज की भेज दी है, उसमें रिपोर्ट्स के फॉर्मेट भी हमने लगा दी के भेजे हैं. कौन से वाले? सर ई ग्राम स्वराज पे जो आपने सजेशंस और रिकमेंडेशंस मांगे थे. अच्छा, आपने भेज दिए? हाँ सर, हमने कल भेज. वो ई ग्राम स्वराज के सजेशन आ गए, देख लेना. यूपी से आए होंगे, नहीं तो आप बात कर लेना. आप हाँ, उसमें सर कौन बोल रहे हैं यूपी से? सर रितेश बोल रहा हूँ सर. कौन? रत्नेश है? अच्छा ठीक, रितेश है वही. हाँ रितेश है. ठीक है रितेश, आपने जो भेजा है ना, मेरे को भी कॉपी किया है क्या? सर आप मेल गई है सर, ऑफिस से ही मेल गई है सर. अच्छा, ऑफिस से मिल गई. सर, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ. जी रिसीव हो गई है सर इनकी मेल. एनआईसी टीम के साथ भी शेयर कर दी गई है. इन्होंने सभी को भेजी है सर. जी ठीक है सर. और किसी फ्रॉम यूपी सर. हाँ बताएं प्रशांत. सर जेम्स के रिलेटेड इश्यूज हैं सर, हम लोगों ने लेटर भेजा हुआ है सर मिनिस्ट्री को सर. अगर मेरे साथ मेरा नंबर है तो मेरे को शेयर कर दीजिए, नहीं तो मेरे मेल पे भेज दीजिए. श्योर सर, विल डू दैट. ठीक है ना, हम लोग हाँ वी विल टेक केयर ऑफ इट कि सारे रिजॉल्व हो जाए. किसी और राज्य का भी अगर कोई भी मुद्दा है, जैम, पीएफएमएस, टीएमपी, किसी से भी रिलेटेड, टीएमपी वाला जो है ना, उसका भी आप रेज कर सकते हैं. और आज नहीं तो हम जब भी नेक्स्ट 1-to-1 मीटिंग करके हम उसको रिजॉल्व करेंगे. सर गुड इवनिंग सर, दिस इज नागेंद्र से रिलेटेड जो हमारे. सर दिस इज नागेंद्र फ्रॉम आंध्र प्रदेश सर. फ्रॉम आंध्र प्रदेश सर. Okay, yes, please. Sir, the PFMS payments which were performed in the month of Jan first week are not yet paid, sir. They are still at pending, sir. We have raised the issue also, sir. Okay. 1 जनवरी वाली पेमेंट में कुछ इशू आया था, जब वो हमारे डाटा सेंटर में कुछ ना क्राइसिस आ गया था, तो वो कुछ फाइलों में Sir. जो पीएफएमएस से फाइल शेयर हुई है ना, लगभग 2000 फाइलें हैं, तो उसमें कुछ हम पीएफएमएस टीम के साथ लाइजनिंग कर रहे हैं. तो मुझे कल रात को ही या आज शायद अप्रूवल मिल जाएगा कि उसके बाद वो हमें कुछ फाइलें शेयर करेंगे रिवर्स में, फिर उस पर हम कोई एक्शन ले पाएंगे. लगभग 2000 फाइलें हैं ये पैन इंडिया, जो हमारा 31 रात से लेके 1 जनवरी के बीच में ना कुछ डाटा सेंटर में इशू आया था. ओके सर. पूरे इंडिया में ही वेबसाइट बंद हो गई थी, तो वो अभी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. ठीक है सर, ठीक है. वो मैंने हम just reminding sir for quick solutions. आप शेयर कर रहे हो? नहीं हो पा रहा वो एनआईसी. सर एनआईसी टीम को बोल दीजिए एक बार शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन. एनआईसी टीम हमारे को ऐसे स्क्रीन शेयर करना है. वो क्या नाम, अनमोल, वहां से शेयर अपना हटा लो.
सर हटा दिया है सर, हमने तो स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी हुई है, हटा दी है। अच्छा आप कर पाओगे? अच्छा कौन, आप बता दो कौन कौन, आप बता दो। मेरे पास शेयर्ड है पर वहाँ पे नहीं। अच्छा आप बता दो, आप बोलो कौन कौन, आप बताओ स्टेट से अभी यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। मेजरली अगर बात करें तो उसमें लक्षद्वीप, लद्दाख की बात करें या लद्दाख में अभी कितने सिटीजन चार्टर बने हैं आउट ऑफ 200? लद्दाख में 36% अभी सिटीजन चार्टर अप्रूव हो चुके हैं सर। 36% ही हुए हैं अभी, और बताएं जो पीछे हैं किसके 100% हो गए हैं बता दो। सर 100% अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार 100% सिटीजन चार्टर हो गए हैं, वेरी गुड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 99% के साथ झारखंड, कर्नाटका, केरला 100%, और सर मध्य प्रदेश 75%, महाराष्ट्र 88%। महाराष्ट्र इज 88%। प्लीज 12% ही बचे हैं आपके, करीब 2000 पंचायतें हो रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करा लें। मध्य प्रदेश के करीब 25% पंचायत हो रहे हैं, इसे भी करा लीजिए। मणिपुर 64%, मणिपुर का अभी 36% इज स्टिल रिमेनिंग, प्लीज गेट इट डन। मेघालय के केस में सिर्फ 4% ही कंप्लीट हुआ है सर। मिजोरम ने अच्छा किया सर, 85% हो चुके हैं। नागालैंड Mizoram, please get the remaining 15% also done. If any assistance is needed from the ministry, we are there to extend all support. सर उड़ीसा और पंजाब के केस में 0%। अच्छा, उड़ीसा citizen charter, no citizen charter has been made till now. Similarly, though you are all providing services, timely services to the citizens, बहुत अच्छे ढंग से आप सर्विसेज दे रहे हैं, बट सिटीजन चार्टर नहीं है, तो कृपया करके जो सिटीजन चार्टर आपके टाइमलाइंस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं एज पर योर एक्ट, रूल्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, प्लीज अडॉप्ट दोज एंड पब्लिश योर सिटीजन चार्टर। पंजाब ऑल्सो, राजस्थान एंड तेलंगाना बोथ हैव कंप्लीटेड 100%। वेरी गुड। राजस्थान एंड तेलंगाना 100% हो गया है, वेरी गुड। वी आवर कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द स्टेट्स हु हैव डन गुड वर्क। Sikkim is at 92%. Sikkim, very good, 85%. Tamil Nadu, please complete remaining 15% also. Then next 4 states are almost 98-99% हो चुका है। त्रिपुरा 96%, Very good. 100%, Uttarakhand is 100%. Compliments to you. उत्तर प्रदेश is 95% and West Bengal is 96%। नितेश, आपका 95% हुआ है, कुछ पंचायत आपकी बची हैं अभी, 2000 पंचायत होंगी, इसको भी कंप्लीट करा लें। श्योर सर। ठीक है ना, बस यही हमारी तरफ से इतना ही था, और थोड़ा मीटिंग भी लंबा रहा क्योंकि प्रेजेंटेशन था, और आगे से वी विल ट्राई कि व्हाटएवर इश्यूज आर रेज्ड बाय द स्टेट्स, नमस्कार सर, हम इमीडिएटली उसको कर लें। सर नमस्ते सर। यस तपस जी बताएं सर। We tried last Odisha. 3 days for service delivery. So when we are Yes. configuring, only 2-3 services it is taking. After that, no response, and we are not able to see whether it is done or not. So if you provide any SOP regarding service delivery and citizen charter, we can complete that. सर्विस डिलीवरी में क्या है, आर यू फेसिंग सर्विस एनी प्रॉब्लम इन सर्विस डिलीवरी? Master data, when we are entering service data, so it is not taking, and uploading of GPDP, that time also it is showing one error that service delivery is not completed within 6 months. योगेश वो शायद ये पुराने वाला रेफर कर रहे हैं, वो कमेंटेड कर दिया है क्या जो पहले ओल्ड था? सेलेक्टेड है, डन। वो सर वो चेंज किया गया। योगेश, गौरव, यस सर। वो योगेश है क्या? सिमरन दिन से भी हम सर्विस मैसेज भेजे थे, लेकिन कुछ सॉर्ट आउट हुआ नहीं। वॉशरूम जा रहे हो भाई, वॉशरूम में वो एक मिनट में आ रहे सर। किसका था, क्या किसका था? उड़ीसा। क्या इशू था मेन? आपको सर्विस डिलीवरी वाला जो फॉर्म है आप उसको सबमिट नहीं किया है? नहीं, ड्यूरिंग GPDP uploading, it is showing that one message that from state level you have to configure the service delivery. So master data, we tried to upload the service delivery, but still that same error is coming. अच्छा, Even you have uploaded on the EGS portal.
सर आईजी सर नमस्कार, मैं नहीं, उसी पे त्रिपाठी किया बोल है। रहा था एमपी से। सर नमस्कार, मैं जी सर। त्रिपाठी बोल रहा था एमपी से सर। सर ये रिक्वेस्ट था जी, सर, ये त्रिपाठी जी जीपीडीपी नमस्कार। अपलोड में जैसा उड़ीसा ने बताया सर, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। जीपीडीपी तो बन गई है सर, लेकिन जो उसको अपलोड करने में वैलिडेशन बहुत लगे हैं सर। एक पंचायत के प्रोफाइल को अपडेट करने में एमपी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि चुनाव हुए थे तो पुरानी जो बॉडी है उसके नाम के कारण एरर आ रही है सर, तो जो बैक एंड से ही ठीक हो पा रही है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था सर कि ये वैलिडेशन को अभी हटा दें सर, अन्यथा ये जीपीडीपी अपलोडिंग का काम में बहुत डिले होगा सर। और साथ में सर हर पोर्टल में सर सरपंच सचिव का फोटो मांगते हैं सर, तो वो जैसे अभी अवार्ड का है सर, तो पंचायत का सरपंच का फोटो मांगना ठीक नहीं है। ई स्वराज में भी एंट्री हो रहा है फोटो का, पंचायत अवार्ड में भी उसका सरपंच का डिटेल एंटर्ड हो रहा है, तो उससे अनावश्यक टाइम खराब हो रहा है सर। नहीं, हमने जो डेटा ईजीएस पे अगर भर दिया गया है तो हम उसको जो है कर लेंगे, बट अभी काफी जगह क्योंकि ई ग्राम स्वराज पे डेटा नहीं है इसलिए हमने भरवाया है। अगर भर लिया गया है तो आप बता देंगे, हम पोर्ट कर लेंगे वहां से ले लीजिए। दूसरा सर ये कह रहे हैं कि प्रोफाइलर में ना कुछ वैलिडेशन लगाए हैं ना, हाँ, उससे इनका प्रोसेस डिले हो रहा है और कोई वो बात नहीं, अगर पंचायतें प्रोफाइलर तो friendly ठीक हो हैं। जाएगा। हाँ, तो हम डेट दे देंगे, एक्सटेंड हाँ, कर देंगे। एक्सटेंड कर देंगे। आप प्रोफाइलर जरूर ठीक करा लें, क्योंकि त्रिपाठी उससे जी क्या वो है, हाँ, आपके सर वो अवार्ड जब हर पैसे जगह पर निकालेंगे उससे सर, असर पड़ राशि रहा है, निकालते क्योंकि समय लगा दें सर, लेकिन अभी जो जीपीडीपी का टाइम है सर, तो जो मेन प्रॉब्लम है उसकी बजाय वो प्रोफाइलर भी कर देते सर, लेकिन उसमें मॉड्यूल में कुछ एरर है सर, बग है, तो वो प्रोफाइलर का एरर मैसेज के कारण फिर वो जीपीडीपी अपलोड नहीं हो रही सर। प्रोफाइलर में क्या एरर है? सर वो पुराने जो मेंबर्स थे सर, उनकी एंट्री डिलीट नहीं होती है, और जब वो नई एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसमें आता है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा करके सर, तो वो अच्छा, बैकएंड से ठीक हो रहा है आप सिंगल सर। आपकी टीम कब मुलाकात कर सकती है वीसी पे? आप बताएं, कल मंडे को जब आप बताएंगे हम लोग जुड़ जाएंगे, और मंडे आपके को जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो हाँ। योगेश जो सर का उस दिन परसों बात हुई थी, जो कमेटीज हुआ था ना, लेगेसी डाटा कमेटी का जो नहीं हो पा रहा है कुछ, तो वो उसमें सोल्यूशन दिया कुछ आपने? हाँ सर, कमेटी के लिए जो डाटा सर ने बोला था वो तो हम लोग डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी का जो फॉर्म है उसमें इशू आ रहा है, उसको करा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से वो सही होके वो लाइव हो जाएगा। अच्छा सर मेरा यही रिक्वेस्ट था सर, जब वो पेमेंट निकालें उस टाइम पे ये वैलिडेट करा लें सर, तो बेहतर रहेगा सर। ये जीपीडीपी की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है सर इसकी वजह से। कोई नहीं त्रिपाठी जी, कोई नहीं, अभी 2-3 दिन का टाइम दीजिए। ये कमलेश ने तो कोड में डिबग करके ठीक करा दिया है, थोड़ा सा तो वो हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मंडे से ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा आपका वो जो ना। जी थैंक यू जो सर। बग थी साथ में पुरानी सर लेगेसी जेम डाटा के लिए की। भी रिक्वेस्ट है सर कि जेम का भी मास्टर डाटा एमपी का ठीक नहीं है सर। करीब 700-800 पंचायतें जी, जेम जी। में मास्टर डेटा ठीक नहीं है, और कुछ ब्लॉक्स का ठीक नहीं है ईमेल, तो जेम वाला भी अगर हो ठीक जाएगा तो थोड़ा सा उसमें भी प्रोग्रेस आएगी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सचिन बताएं। हाँ सर, हमारे यहाँ पे सर जो आपने एक स्लाइड दिखाई थी सर्विस डिलीवरी की सर, वहाँ पे सिर्फ 9 दिखाई थी सर्विसेज सर। एक्चुअली वो 9 नहीं है सर, वो पूरा डेटा 42 है सर। हमने कुछ तो हमारे यहाँ से डेटा कुछ तो गलत गया है सर, वो सर्विसेज सर ज्यादा है। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं तो देखते ही जो है ना, और सेक्रेटरी साहब ने देखा तो उन्होंने फिर आपले सरकार खोला, उन्होंने बोला इतनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो आप दोबारा से डेटा भरवाएं, तो प्रोफाइलर में आप डेटा आपके लेवल पे ही भर जाएगा वो। यस सर। सर दूसरा एक इशू था सर, आपने बताया कि 77 जीपी अभी पीएफएमएस इनेबल होने बाकी है सर। सर अगर उनका लिस्ट मिलता है हमें तो सर हम उसका 1 to 1 सर उसका फॉलो अप करते हैं सर। उनका लिस्ट सर हमेशा चाहिए सर 77 जीपी का सर। हम आपको दे देंगे, ये जो पीएफएमएस ऑनबोर्डेड नहीं है ना, इसका लिस्ट जो है प्रोवाइड कर देना। सर दूसरा एक इशू है सर ई ग्राम स्वराज पोर्टल में सर हमें जो पैसा जीपीएस का सर प्लान भरना है सर जीपीडीपी पे, तो पैसा प्रोफाइल सर आता नहीं उसमें। डेमो साइड पे वो पैसा प्रोफाइल है सर, लेकिन एक्चुअल साइड में नहीं है सर। तो भरना है या नहीं भरना है सर, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ डाउट है सर। ये कमलेश आप सुन रहे हो उसको? कमलेश? यस सर। सर पैसा प्रोफाइल एलजीडी में जो इन्होंने अपडेट किया वही हम ले रहे हैं, तो अगर नहीं है तो आप एलजीडी में एक बार पैसा अपडेट कर दीजिए, वो आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। ओके सर।
सर हमारा जिम में सर अभी तक सर 9,500 सर जीपी बाकी है सर जनरेशन के लिए सर। तो थोड़ा सा हमारे सर प्रयास चालू है सर, हमारा VPN सर मिला है लेकिन उसको अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है सर। जो सर के संपर्क में सर हम है, लेकिन उसमें कुछ तो दिक्कतें आ रही है, अभी वो प्लेटफॉर्म वगैरह सब चेंज हुआ है सर थोड़ा सा। ईमेल, अच्छा डेलीगेटेड एडमिन हम लोग लगे हुए उस पे, और जो ईमेल डीएक्टिवेटेड हो गई हैं वो भी हम लोग एक्टिवेट करा दें। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक सर एक क्लैरिटी चाहिए थी रिगार्डिंग SPU टीम जो महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रही है। एक्चुअली हमारे पास सर एक मेल रिसीव हुआ था फ्रॉम महाराष्ट्र की इनकी पुरानी टीम चेंज हो गई है SPU की और नई टीम से ही कोऑर्डिनेट किया जाए, पर अभी भी मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर। तो एक बार क्लैरिटी मिल जाती कि कौन सी टीम अब है। हमारे यहाँ से सिर्फ मार्शल बोर्डे है, आपकी वॉइस नहीं आ रही स्टेट लेवल से। मार्शल बोर्डे है स्टेट लेवल से, IT एक्सपर्ट। ठीक है सर, ठीक है। नई टीम आ गई है उनकी। क्या चीज आपकी नई टीम आई है सचिन कोई? नहीं सर, ये क्या हुआ है कि जो हमारा तो प्रोजेक्ट सर अपने सरकार सेवा केंद्र है उसमें सर पहले CSC थी सर, अभी वो CSC को टर्मिनेट किया है, अभी CSC नहीं है। उसके जगह सर रेलटेल और ITI लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल ग्रुप है सर, तो वो है सर अभी। तो उनके तरफ से किसी ने सर मेल भेजा होगा सर। तो जो पुरानी टीम है उससे अभी कोऑर्डिनेशन नहीं करे ना? CSC से अभी नहीं करना है सर, CSC से अभी नहीं करना है। जो स्वामी वगैरह जो बेचते हैं सर उसे अभी नहीं करना है सर। ओके ठीक है। नहीं अभी वैसे वो हमसे कनेक्ट भी नहीं करते हैं, पिछले लगभग 1 महीने से हमारे से बातचीत भी नहीं करते हैं। नहीं सर, वो CSC की तरफ से थे सर, वो अभी CSC नहीं है सर। सर कर रहे हैं, 1-2 बार गुना की तरफ से मेल आई थी स्वामी के रहते हुए, तो इसलिए पूछा था। मैसेज भी करे थे। ठीक। अगर कोई और इफ एनी अदर स्टेट हैज एनी क्वेश्चन, किसी और राज्य का कोई और अगर प्रश्न है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। गुड इवनिंग। अदरवाइज यू क्लोज दिस मीटिंग। सर गुड इवनिंग सर, टीम उड़ीसा। गुड इवनिंग सर, हमारा एक इशू वाला पंचायत से है, उनका रिसोर्स एनवेलप अपडेट नहीं हो पा रहा है। स्टेट एक स्कीम और वही सर अगर ऐड कर रहे हैं तो ये सेव नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं बताओ सर। ये जोर से बोलिए योगेश। जी सर ये पैसा पंचायत का जो नई फंक्शनलिटी आई है सर, पैसा पंचायत में विलेज वाइज रिसोर्स एनवेलप अपडेट करने के लिए बोला गया है। तो वेस्ट झारखंड से भी सर यही इशू था, तो उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है वो LGD से हमारे पास येस आ रहा है, पर उनका कहना है कि उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसा होती ही नहीं है। दूसरा सर, अभी भी पैसा की कमेटी फॉर्म नहीं हुई है झारखंड के अंदर। जैसे मेरी कल अरिंदम से बात भी हुई थी, तो जो SPM वहाँ पे है, सिमिलर सा इशू इनका भी है। LGD से हमारे पास पैसा स्टेटस में कोई भी विलेज नहीं आ रहा है। तो सर और जो भी रिसोर्स एनवेलप है वो पैसा का सेंसस वाइज रिसोर्स एनवेलप हम अपडेट कराते हैं। तो सर अगर ये सर क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि हमें पैसा पंचायत का ही रिसोर्स एनवेलप अपडेट करना है पैसा के केस में। डिस्ट्रिक्ट पंचायत पैसा के लिए होंगे कि नहीं? अगर नहीं है तो वो LGD से रिमूव कर दें। फिर कई सारी सर पंचायत ऐसी है जिसमें कोई भी सेंसस विलेज है ही नहीं। सारे जो विलेजेस फॉर्म हुए आफ्टर 2011 फॉर्म हुए हैं LGD के अंदर। एक बार कौन से डिवीजन से बात करते हैं? आप कह रहे हो कि पेसा ग्राम पंचायत में विलेज कोई भी नहीं आ रहा है मैप होके LGD में, जिसमें इशू आ रहा है? नहीं, वो जो विलेजेस नहीं, हमने जो अभी वैलिडेशन लगाया था लास्ट टाइम पे, वो हमको ये बोला गया था कि 2011 के सेंसस विलेज वाइज जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिसोर्स एनवेलप उसके प्रोपोर्शनेट दिखा देंगे। लेकिन कुछ पंचायत ऐसी हैं जिनमें सेंसस विलेज 2011 नहीं एग्जिस्ट है, क्योंकि वो LGD में नए विलेज 2011 के बाद के हैं, 2011 के बाद है। तो उस केस में वो फिर वो रिसोर्स एनवेलप डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब उस प्रोपोर्शनेट में। तो उसके लिए क्लियरिटी लेनी पड़ेगी कि जो अगर जहाँ पे सेंसस अगर विलेजेस ना हो तो एरिया प्रोफाइलर की जो पॉपुलेशन है उससे क्या डिवाइड कर पाए, या मतलब सर क्या करना है, मतलब इस पे क्लियरिटी चाहिए। जी सर। सर सिमिलर पॉइंट पे ना झारखंड का भी यही इशू है सर। वो ये कह रहे हैं कि उनके तो अभी कोई पॉलिसी भी फॉर्म नहीं हुई उनके स्टेट में, और उनके प्लान 2025-26 के रुक जाएंगे। उनका कहना ये है, जो पैसा पंचायत है। तो वैसे ये ऑप्शनल रखा था, पैसा वाला तो ऑप्शन था। नहीं सर,
मैंडेटरी है सर। इसको एक बार डिस्कस करके फिर तो फिर इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये मिनिस्ट्री की साइड से पैसा की जो है ना, पैसा डिवीजन से डिस्कस करके वो अपडेट कर देंगे मंडे ट्यूसडे में। ठीक है सर। और अगर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत पैसा नहीं है तो एलजीडी में प्लीज अनमार्क कर पड़ेंगे। अलग अलग स्टेट्स बटे हुए हैं, ये उड़ीसा के साथ आप कर रहे हैं। उड़ी तो प्रेरित जो है हमारे मिस्टर प्रेरित कंसल्टेंट है, वो आपके साथ सेपरेट 1-on-1 वीसी भी कर लेंगे ताकि हम ये इसको रिजॉल्व कर पाए। आपके यहाँ से एनआईसी योगेश, आप योगेश तुम टाई अप कर लेना प्रेरित के साथ जब वीसी करेंगे। सर एक सर रितेश बोला था सर यूपी से, एक सर इशू प्रेवलेंट हुआ है अभी ग्राम स्वराज में, जो कि सर सर वो इनसफिशिएंट फंड का इशू है। दरअसल हो क्या रहा है सर, पहले 21-22, 22-23 में और 23-24 में कुछ प्रोविजंस पहले नहीं थे ग्राम स्वराज में, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं 23-24 में फाइनेंशियल ईयर, और कुछ उसमें प्रोविजन जो है सर 24-25 अभी लास्ट ईयर किया गया है। तो इसमें हुआ क्या है सर कि जैसे कि एक प्रोविजन पहले ये था कि मतलब ये नहीं था जो इस समय है कि आप स्कीम अमाउंट से ज्यादा का खर्च नहीं कर सकते, जो प्लानिंग में स्कीम अमाउंट है। और एक जो प्रोविजन सर डाला गया वो क्या गया, प्लान अमाउंट से मोर देन डबल का आप एडमिन अप्रूवल नहीं दे सकते। अब सब पहले ये प्रोविजंस 21-22 और 22-23 में नहीं हुआ करते थे। तो सर ये उससे कारण से हुआ क्या है सर कि बहुत जो जिन लोगों ने पहले ये अप्रूवल्स दे के और ज्यादा खर्च कर लिया, या उन्होंने किसी पंचायत ने खर्च ही नहीं किया, कुछ पुरानी उनकी एक्टिविटी आईडीज थी, और नए जो फाइनेंशियल ईयर उसमें उनका सारा पैसा जो प्लान अमाउंट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन उनके पिछले साल के सारे पैसे बचे हुए हैं बहुत जगह। मतलब सब जगह तो नहीं है सर, लेकिन तकरीबन 10 to 15% पंचायतों में ये इशू सर अब आ रहा है धीरे धीरे। और इसके लिए सर हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि सर अगर पुराने साल का एक सप्लीमेंट्री सर 10-15 दिन के लिए खोल दिया जाए तो जो पुराना पैसा है वो लोग यूटिलाइज कर लेंगे पंचायतें। तो इसके लिए एक लेटर भी सर हम भेज रहे हैं, आज या कल में आपके पास चला जाएगा। ये इशू अगर सर अपने लेवल पे और एनआईसी टीम से डिस्कस कर लें तो सर ये मतलब हमें एक टेम्पररी प्रोविजन मिल जाए एक सप्लीमेंट्री प्लान डालने का प्रीवियस ईयर्स में फॉर 15 days और 10 days, तो जो भी आप डिसाइड कर लें सर, उसमें हम सबसे करवा लें। थैंक यू सर। ये बोल रहे पैसा बचा पड़ा 21-22 का 22-23 का, तो सप्लीमेंट्री प्लान खुलवा दिया जाए हमें 15 दिन के लिए, तो हम उसको उसका एक फॉर्मल रिक्वेस्ट बस तो नए साल में लेना चाहिए हमें, बट एक बार आने दो। एनी अदर स्टेट? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एनी अदर स्टेट? कोई और राज्य से कोई सवाल? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टेट? अभी नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस, आवर टीम, वी आर ऑलवेज देयर। कभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, चाहे हमारे मिनिस्ट्री से जो हैं लोग हैं या एनआईसी से हमारे ऑफिसर्स हैं, यू कैन अप्रोच एनीवन, और हम लोग इमीडिएटली एट द शॉर्टेस्ट नोटिस वी कैन organize the meeting or the VC. And thank you for joining. It was a long session, but all the points were important, and I hope that by the time we conduct the next meeting, lot of progress will be made under Citizen Charter, under DRPG awards, and also service delivery and the digital payments. Thank you. इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा था कि हमारा जो एक प्लान है कि नेक्स्ट वीक में 7-8 दिन जो है हम लगातार सोच रहे थे कि 3 से 4 एक स्टेट वाइज बैच बना के वीसी की जाए आपके साथ। कुछ हमें फाइंडिंग मिली थी तो हम 3 से 4 रखना चाह रहे हैं। तो जो भी स्टेट इंटरेस्टेड है डेट वाइज वो थोड़ा सा मिनिस्ट्री में प्रेरित या मोहित को अपडेट कर दें कि जैसे आप 6-7 स्टेट का ग्रुप बना लीजिए, जैसे भी है जो आप दे देंगे ना डेट्स जो आप कंफर्टेबल है,
तो उस डेट से हम एक वीसी कंडक्ट करेंगे 3 से 4, ठीक है, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सर। इसमें डीपीएमयू को ऐड करेंगे सर, वो स्टेट बीसी में? किसको करेंगे? डीपीएमयू। डीपीएमयू देख लो आप, अगर कुछ अलाउड होगा तो हम कुछ देख लेंगे कितने अलाउड होंगे। सर डीपीएम में एसपीएम में ठीक रहेंगे, डीपीएम में तो बहुत सारे हो जाएंगे 750 डीपीएम में। लगभग 100 तक के लोग देख लेंगे, लेकिन उतना डिस्कशन नहीं हो पाएगा। आप डीपीएमयू को तो आप ही हैंडल करेंगे, मतलब आप इंटरनल मीटिंग कर लीजिए डीपीएमयू के साथ एसपीएमयू, तो हमें जनरल वो आप ऑब्जेक्टिव दे दीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में हम डीपीएमयू को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा सवा घंटा जो भी है उसमें एसपीएमयू अगर 5 स्टेट या 6 स्टेट या 7 स्टेट होती हैं तो उन्हीं को एड्रेस कर पाएंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर ये Thank you. ईगल प्लस का स्पीड वाला इशू थोड़ा रिजॉल्व कर दीजिए, ये बहुत दिक्कत हो रहा है सर। वो सर ठीक है इशू सर। सर वो काफी सर इम्प्रूव हो गया है और हम लोग काफी मॉनिटर भी कर रहे हैं उसको, मतलब रिग्रेस मॉनिटरिंग हो रही है और काफी हमने उसमें इम्प्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन करी है। तो अगर आप देखेंगे तो कल से काफी स्पीड में सुधार हो चुका है। ये सर मैंने इसमें 2 सर्वर ऐड कर दिए हैं और हमने 2 सर्वर और ऐड कर दिए हैं इसमें। जितनी स्ट्रेंथ थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ले आए हैं इसको हम। अगर तो सर अगर कभी ज्यादा इशू आए तो एक बार ना इनकॉग्निटो मोड में चला ली करिए, कई बार कैशे का भी इशू होता है वो। चलो ठीक है, थैंक यू। इसमें मेरा यही सबमिशन था ना, जो हमने फाइंड आउट किया है स्टेट कि वो लॉगिन करके बैठे रहते हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी कि नाम वो रिसोर्सिस को ऑक्यूपाई करता है। हमारी जो अपनी लोकल एनालिसिस हुई है कि वो जैसे फंस गया, प्रोफाइलर के केस में फंस गया तो वो लॉगिन करके बैठा है। तो हमने क्योंकि 30 मिनट का सेशन दिया हुआ है यूजर का, नॉर्मली सेशन कम होता है लेकिन हमने आप लोगों की सुविधा के लिए 30 मिनट्स का सेशन दिया हुआ है। तो आप काइंडली अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो भी है एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए कि अगर आपको वो कुछ इशू आ रहा है तो आप उसको क्विट कर दीजिए। अगर आपको कोई वैलिडेशन इशू आ रहा है कुछ प्रोफाइलर का, जैसे अभी सर ने बताया था त्रिपाठी जी ने, तो उससे भी कि नाम क्या है कि रिसोर्सेज दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाता है सर्वर का रिसोर्सेज। तो एक प्रैक्टिस आप ऐसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।